Hello everyone. We are starting with the chapter number 5, Principles of Inheritance and Variations. This is the part 1 of the chapter, class 12, Biology. Topics to be covered in this video is Mendel's laws of inheritance. There are 3 laws of Mendel's: law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Before studying the different laws, let us see some important terms which are going to come in the chapter. Genetics. It is a branch of science that deals with the study of inheritance, heredity and variation of characters और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. यानी हमें इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में स्टडी करना है और जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करना है. देन वी हैव टू गो टू द जेनेटिक्स. व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. आपके पेरेंट्स से आपको कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. Okay, which character you have inherit from your parents. What is variation? You differ from your parents, you are not totally similar to your parents. This is called as variation. Character, any feature which is heritable, जो transfer होता है from one generation to another, that is called as a character. A heritable feature among the parents and the offspring. For example, eye color transfer होता है from parents to offspring. But eye color can be of different type, that is called as a trait. It may be brown eye or it may be blue eye. So these variants of the character is called as a trait. What are alleles? Every character is controlled by a gene. Okay, and alternative form of gene is called as a allele. For example, height का character है, उसके 2 टाइप के एलील्स हो सकते हैं. इट कैन बी टॉल, इट कैन बी ड्वार्फ. टॉल को हम कैपिटल टी से शो करेंगे और ड्वार्फ को स्मॉल टी से शो करेंगे. सो देर आर 2 एलील्स ऑफ अ जीन फॉर कैरेक्टर हाइट. व्हाट इज होमोजाइगस? द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज सिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन. फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों एलील्स जो हैं एक जीन के सेम है, कैपिटल टी है. ओके, एज यू नो दैट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. सो अगर दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर जो एलील्स हैं उस जीन के अगर सेम है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई है, प्योर हैं, सिमिलर हैं, देन इट इज़ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस. Heterozygous. In heterozygous, the alleles are different on the chromosomes. The condition in which chromosome pair carries dissimilar alleles. अगर क्रोमोसोम जो पेयरिंग कर रहे हैं उन पर दोनों एलील्स अलग अलग हैं, then that condition is called as heterozygous. Capital T small t, capital Y small y, capital B small b, all these are heterozygous conditions. इन दिस हेट्रोजाइगस कंडीशन जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर. द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट कैन बी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों प्लांट्स टॉल हैं. तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी इज प्रेजेंट बट द प्लांट इज टॉल. So tallness can express itself in the presence of dwarfness. So tall is a dominant character and dwarf is a recessive character which cannot express itself in the presence of capital T. Phenotype. As I have told you that there are 2 types of plants जो tall होते हैं. कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, बट बोथ आर tall. Phenotypically they are tall. Physical expression is tall. So this is the phenotype. What is the genotype? एक में जीनोटाइप कैपिटल टी है, एक में जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है.
तो दिस इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैरेक्टर. व्हाट इज हाइब्रिड? व्हेन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स, अगर बिल्कुल दोनों पेरेंट्स जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर नहीं हैं, अगर वो इंटरब्रीड करते हैं, दे फॉर्म द हाइब्रिड. ओके, now we come to the topic. Gregor Mendel is known as a father of genetics. He did many experiments on plant garden pea, Pisum sativum. Remember the name, scientific name of the plant on which he studied. He studied for 7 years from 1856 to 1863 and he studied 7 characters. 7 number याद रखिए. कैरेक्टर्स कौन कौन से उसने स्टडी किए प्लांट्स के अंदर? जो पी प्लांट था, स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर. एंड ही फाउंड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. उसने कौन से देखे? जो डोमिनेंट थे स्टेम हाइट में, टॉल वाज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ रिसेसिव. ओके, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल पोजीशन वाज डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल. फ्लावर कलर में वॉयलेट कलर वॉज डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर ऑफ द फ्लावर. पॉड शेप, इन्फ्लेटेड शेप इज डोमिनेंट ओवर द कंस्ट्रिक्टेड शेप. पॉड कलर, ग्रीन कलर इज डोमिनेंट ओवर द येलो कलर ऑफ द पॉड. सीड शेप, राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर द wrinkled shape. And seed color, yellow color is dominant over the green color. So these 7 colors he studied in the pea plant. Let us start with the experiment जो Mendel ने start किया. He did monohybrid cross. What do you mean by the mono? Mono means single. Monohybrid cross means 2 plants लिए उसने, pea plant लिए, and both the plants are similar in all characters except one, that is their height. One is tall, other is dwarf. So take out your notebook and write tall and dwarf. ऊपर लिख लीजिए tall and dwarf. He crossed the 2 plants. Now tall plant के जहाँ आपने लिखा है वहाँ नीचे लिखिए कैपिटल T, और जहाँ dwarf लिखा है वहाँ लिखिए small t. This is the genotype of the plant. होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट उसने लिए. ओके, अब गेमिट्स बनेंगे. ओके, गेमिट्स जब बनते हैं तो दोनों जो ये एलील्स है दे गेट सेपरेटेड and they go into the different gametes. One capital T will go in the one gamete and other capital T will go in the other gamete. So you can make, यहाँ पर 1 सर्कल बना हुआ है कैपिटल T का, तुम 2 सर्कल बना सकते हो कैपिटल T के. ऐसे ही 2 सर्कल बना लीजिए स्मॉल t के एंड मेक द क्रॉस. कंबाइन करिए. फर्स्ट कैपिटल T को दोनों स्मॉल t से कंबाइन करिए, सेकेंड कैपिटल T को दोनों स्मॉल t से कंबाइन करिए. Anything can happen. And in the end, in the first generation, he got all tall plants. All tall plants he got in first generation. Dwarf कहीं खो गया. There was no dwarf plant in the first generation. Okay, तो जीनोटाइप उसका था कैपिटल T स्मॉल t. अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी आप देखते बनाते जाइए क्रॉस इसको. अब उसने इस F1 जनरेशन के 2 प्लांट्स ले लिए. हेट्रोजाइगस हैं दोनों. हेट्रोजाइगस टॉल हैं तो टॉल, बट दे आर हेट्रोजाइगस, यानी वन इज हैविंग कैपिटल T एंड स्मॉल t, वन कैपिटल T एंड स्मॉल t. अगेन मेक द गेमीट्स. पहले वाले प्लांट में गेमीट बनेंगे कैपिटल T सर्कल में एंड स्मॉल t सर्कल में, लिख लीजिए. दूसरे वाले प्लांट के भी दोनों गेमीट्स बना लीजिए, कैपिटल T एक सर्कल में, स्मॉल t दूसरे सर्कल में. एंड आफ्टर दैट मेक अ स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ऊपर की साइड पर फर्स्ट प्लांट के गेमीट लिखिए कैपिटल T स्मॉल t, और साइड में सेकंड प्लांट के गेमीट लिखिए कैपिटल T स्मॉल t, और अब इनको कंबाइन करिए. ऊपर वाला जो कैपिटल T है साइड से कैपिटल T से भी कंबाइन कर सकता है, 50% चांस है उसके, और ये वाला कैपिटल T स्मॉल t से भी कंबाइन कर सकता है.
फर्स्ट प्लांट का स्मॉल टी सेकेंड प्लांट के कैपिटल टी से भी कंबाइन कर सकता है, सेकेंड प्लांट के स्मॉल टी से भी कंबाइन कर सकता है एंड मेक द चेकर बोर्ड. व्हाट दिस चेकर बोर्ड शोज, काउंट कर लीजिए इसमें आप, या इनको शेड कर लीजिए. जो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले हैं जीनोटिपिकली उनको वन कलर कर लीजिए, और जिन जो अलग अलग हैं उनको अलग कलर कर दीजिए. तो जैसे इसमें लाइट ब्लू किया हुआ है कैपिटल टी को, बट ये टॉल है. कैपिटल टी स्मॉल टी इज ऑल्सो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी इज ऑल्सो टॉल, बट in the F2 generation he was able to get dwarf plant which was not there in the F1 generation. small t इकट्ठे आ गए वापस. now they are happy together, they can express itself. okay, so अगर आप phenotypically एक्सप्रेशन देखो बाहर से दिखने में प्लांट कैसा लग रहा है, you will get the ratio 3:1, 3 are tall, 1 is dwarf. this is the monohybrid phenotypic ratio. Now we come to the genotypic ratio. homozygous tall 1 है, कैपिटल टी 1 ही है. हेट्रोजाइगस टॉल तो है बट हेट्रोजाइगस है, दोनों एलील्स अलग अलग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं, और होमोजाइगस ड्वार्फ 1 है. तो यानी रेशो जो आया, जीनोटिपिक रेशो जो आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो था 1:2:1. So phenotypic ratio is 3:1 of monohybrid cross and genotypic ratio is 1:2:1 in monohybrid cross. These were the results of Mendel's experiment. इसी तरीके से उसने जितने भी कैरेक्टर्स थे, ऑल 7 कैरेक्टर्स, सबके ही उसने इस तरह से अलग अलग करके चेक किया कि क्या डोमिनेंट कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में मिलता है और ड्वार्फ कैरेक्टर सिर्फ सेकेंड जनरेशन में दिखाई देता है. Mendel made similar observations for other pair of traits also, and he proposed that some factors were inherited from the parent. उसको जीन्स के बारे में नहीं पता था, उसने इनको फैक्टर बोला. उसने बोला कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ फैक्टर्स जाते हैं. फैक्टर्स आर नाउ कॉल्ड एज जीन्स. सो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि उसने क्या नाम प्रपोज किया था जीन्स के लिए. ही प्रपोज द नेम फैक्टर्स फॉर द जीन्स. इसके अलावा और फर्दर देखिए, इसको और डिफरेंट तरीके से भी लिखा जा सकता है. आउट ऑफ 4, 1/4 इज कैपिटल टी. 2/4 आउट ऑफ 4, 2 आर कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड आउट ऑफ 4, 1/4 इज स्मॉल टी. सो द रेशियो इज 1/4 कैपिटल टी, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 small t. And during fertilization, pollen grains of tea have 50% chance to pollinate eggs of capital T and small t. ये मैंने बताया कि ऊपर वाला जो कैपिटल टी है, साइड वाले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से 50% चांस है वो कैपिटल टी से कंबाइन करे, 50% चांस है वो स्मॉल टी से कंबाइन करे. इज इट क्लियर? अब इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से लिखिए. इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉस किया गया कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो तुम लिखोगे वो होगा ax प्लस by विद इन द ब्रैकेट रेज टू द पावर 2. a क्या है? नंबर 1/2 मिला हमें कैपिटल टी. स्मॉल b क्या है? अगेन हाफ ऑफ टी. 50% चांस है इसके कंबाइन होने के दूसरे से. तो अब इनको इज द रेज टू द पावर 2. अब इनको करिए, आप कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द सेम इक्वेशन. 1/4 कैपिटल टी, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 स्मॉल टी. सो दीज आर द रिजल्ट्स. नाउ वी कम टू द टेस्ट क्रॉस एंड द बैक क्रॉस. कैसे पता करें जीनोटाइप? अगर हमें नहीं पता, द प्लांट इज टॉल बट वी डोंट नो whether the plant is having the gene capital T or a capital T small t. This can be done by test cross. Okay. Back cross क्या है? When cross is done between a hybrid and its any parent, किसी भी parent से उसको कर दीजिए, then it is called as a back cross. But test cross में जो crossing किया जाएगा, crossing of an organism with a dominant phenotype to a recessive individual.
हमेशा पेरेंट जो रिसेसिव पेरेंट लेंगे हम, हाइब्रिड को हम रिसेसिव पेरेंट से अगर हम करते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को कहीं शो नहीं करेगा, इसलिए एक्चुअल रिजल्ट हमें जीन्स का पता चल जाएगा कि क्या जीन्स थे. सो व्हेन अ ऑर्गेनिज्म इज क्रॉस्ड विद व्हेन अ कैरेक्टर इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट देन दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस. अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर टॉल प्लांट है, हाइब्रिड है, और उसको टेस्ट करने के लिए हमने इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दिया, तो व्हाट विल यू गेट? मेक द चेकर बोर्ड अगेन. यू विल गेट 1:1 रेशो. 50% विल बी टॉल, 50% विल बी ड्वार्फ. ओके, अगर वो हेट्रोजाइगस है तो. ओके, एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखिए इसको. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है डायग्राम, और इससे सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. मेक दिस डायग्राम, मेक दिस क्रॉस इन योर नोटबुक. एक फ्लावर है जो वॉयलेट कलर का है, बट इसमें हमें इसको जीन्स नहीं पता इसके क्या है अंदर. इसमें दो तरीके के जीन्स हो सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है, क्योंकि ये वॉयलेट है एंड वॉयलेट इज डोमिनेंट. अब इसको चेक करने के लिए हम क्रॉस करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो बने हुए हैं क्रॉस. मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करती हूँ पहले, कि इसको क्रॉस किया होमोजाइगस रिसेसिव से, यानी वो स्मॉल डब्ल्यू हैं. मेक द चेकर बोर्ड. साइड में लिख लीजिए कैपिटल डब्ल्यू, ऊपर लिख लीजिए स्मॉल डब्ल्यू. दीज आर द गेमीट्स एंड नाउ कंबाइन देम. यू विल फाइंड ऑल द प्लांट्स वर हैविंग द वॉयलेट फ्लावर. अगर सारे प्लांट्स में वॉयलेट फ्लावर मिलता है तो मीन्स जो अननोन फ्लावर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. ये इंटरप्रिटेशन है. रिजल्ट आया हमारे पास सारे फ्लावर वॉयलेट, बट इंटरप्रिटेशन क्या निकाला हमने कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट. राइट हैंड साइड पर आ जाइए. अगर बाय चांस उसमें कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होता तो दो गेमीट्स जो बनते, एक कैपिटल डब्ल्यू बनता, एक स्मॉल डब्ल्यू बनता, और जिससे हमने क्रॉस किया वो तो रिसेसिव है, स्मॉल डब्ल्यू. कंबाइन करिए, अगेन मेक द चेकर बोर्ड. तो तुम्हें 50% वॉयलेट एंड 50% वाइट फ्लावर मिल गए. वाइट फ्लावर कहाँ से आ गए? बिकॉज द अननोन फ्लावर इज हैविंग अ एलील स्मॉल डब्ल्यू. So the unknown flower is heterozygous. अगर 1:1 रेशो आती है, ध्यान रखिए टेस्ट क्रॉस में अगर 1:1 रेशो आती है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, और अगर सारे प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर हमें दिखाई देता है तो वो कैपिटल डब्ल्यू होगा. अब आ जाइए एग्जैक्ट लॉज पर. हमने इतना स्टडी कर लिया, अब लॉज पर आते हैं. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर्स. ये क्लियर हो गया कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स हैं, एंड फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स. जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों पेयर में मिलेंगे. एक कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स दो होंगे. अगर वो डिसिमिलर हैं, जो अपने आप को इन डिसिमिलर कैरेक्टर अगर हैं और वन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, the first one is called as a dominant, and the other which cannot express itself in the presence of first, that is called as a recessive. So capital T is dominant and small t is recessive. This is called as a law of dominance. Law of segregation. During the formation of gametes, the two factors they get separated and they go into the different gametes. ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के एलील्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, दे गो इनटू द डिफरेंट गेमीट्स. दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, कैपिटल टी के दो गेमीट्स बन रहे हैं, दोनों ग्रीन कलर में अलग अलग गेमीट बन गए. दोनों में एक कैपिटल टी चला गया, दूसरे में दूसरा कैपिटल टी चला गया. अगर दोनों स्मॉल टी हैं तो गेमीट्स कौन से बनेंगे? दोनों गेमीट्स कैसे बनेंगे? स्मॉल टी बनेंगे. और अगर डिसिमिलर है ये तो एक गेमीट में कैपिटल टी बन गया और एक गेमीट में स्मॉल टी बन गया, यानी डिसिमिलर गेमीट्स बन गया.
तो हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो 2 टाइप के गेमीट बनाते हैं, होमोजाइगस जो होते हैं वो सिमिलर गेमीट बनाते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ वी कम टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड, डाई मीन्स 2, यानी अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने 2 प्लांट्स लिए हैं, दे आर सिमिलर इन ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट 2, ओके, 2 कैरेक्टर्स में डिफर कर रहे हैं वो। हमने लिया एक प्लांट जिसमें राउंड एंड येलो सीड है, एक हमने लिया जिसमें रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड है। राउंड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड एंड ग्रीन, ओके। सो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या राउंड सीड हमेशा येलो ही होगा, क्या रिंकल्ड सीड हमेशा ग्रीन ही होगा, या कोई इंटरमिक्सिंग भी हो सकती है कि राउंड कहता है कि तुम येलो कलर तुम अपने आप जाओ जहां तुम्हें जाना है, रिंकल्ड कहता है ग्रीन कलर तुम जहां तुम्हें जाना है, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। ये हमें इस क्रॉस में देखने को मिलेगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस में। नाउ मेक द क्रॉस, अगेन मेक द क्रॉस, स्टार्ट डूइंग द वर्क इन योर नोटबुक्स। पहले बना लीजिए, हमने प्लांट लिया है राउंड एंड येलो, ओके, उसके जीन्स लिखिए पेरेंट्स के, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो। राउंड के लिए 2 हैं कैपिटल आर, और येलो के लिए 2 हैं कैपिटल वाई। ऐसे ही रिंकल्ड और ग्रीन के लिए भी बना लीजिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। और अब गेमीट्स बनाइए। ये देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन में कंबाइन करे, आर कैपिटल आर हमेशा वाई से ही कंबाइन करेगा क्योंकि और कुछ है ही नहीं। सो ऑल गेमीट्स विल बी कैपिटल आर वाई, कैपिटल वाई। और होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन है तो ऑल गेमीट्स आर सेम, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एंड व्हेन देव कंबाइंड इन द F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स वर हैविंग राउंड एंड येलो सीड्स, क्योंकि वहां पर कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है। अब इनको क्रॉस करिए, सेकेंड जनरेशन बनाइए। सेकेंड जनरेशन में पहला प्लांट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके 4 तरीके के गेमिट्स बन जाएंगे। कैपिटल आर कैन गो विद कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैन गो विद स्मॉल वाई ऑल्सो, स्मॉल आर कैन गो विद कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर कैन गो विद small y. So 4 types of gametes are formed in the first plant and 4 types of gametes are formed in the second plant. अब इनका चेकर बोर्ड बनाइए। ऊपर लिख लीजिए फर्स्ट प्लांट के सारे गेमिट्स, साइड में लिख लीजिए सेकंड प्लांट के सारे गेमिट्स, एंड स्टार्ट कंबाइनिंग देम। फर्स्ट प्लांट का फर्स्ट गेमिट उठा लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, वो किसी भी गेमिट से कंबाइन कर सकता है। अगर वो कैपिटल आर कैपिटल वाई से कंबाइन करता है तो आर वाई कैपिटल हैं सारे। अगर सेकंड से कंबाइन करता है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, ओके। और अगर वो कंबाइन करता है स्मॉल आर कैपिटल वाई से तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और अगर लास्ट वाले से कंबाइन करता है फर्स्ट गेमीट तो यू विल गेट स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मेक दिस चेकर बोर्ड। अब इसमें देखिए जहाँ पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट है, राउंड एंड येलो है। तो देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 येलो कलर के हैं, राउंड एंड येलो 9 हैं। अब आ जाइए ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढिए जहाँ पर कैपिटल आर तो हो बट वाई जो है दोनों स्मॉल हो, यानी वो ग्रीन कलर हो। तो राउंड एंड ग्रीन, ये देखो ग्रीन कलर का बना हुआ है, राउंड एंड ग्रीन 1, राउंड एंड ग्रीन 2, राउंड एंड ग्रीन 3। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए कि स्मॉल आर हो बट वाई एक कैपिटल जरूर हो, यानी रिंकल्ड हो गया वो, अब कैरेक्टर रिंकल्ड आ गया और येलो कलर आएगा, डोमिनेंट है वो, तो वो भी 3 हैं। लाइट येलो कलर के, क्रीम कलर के जो हैं, और जो लाइट ग्रीन कलर का है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन है। यहाँ पर तो कोई डोमिनेंट कैरेक्टर ही नहीं है, डोमिनेंट एलील ही नहीं है। स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओनली 1 plant is there, wrinkled and green. So ratio will get here phenotypic ratio, जो हमें बाहर से दिख रही है, नंबर लिखा हुआ है रेड कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राउंड एंड येलो आर 9। पर्पल कलर से लिखा हुआ है 1 2 3, राउंड एंड ग्रीन आर 3।
ग्रीन कलर से लिखा हुआ है 1 2 3, रिंकल्ड एंड येलो 3, एंड ब्राउन कलर से लिखा हुआ है 1, wrinkled and green 1. So this is the phenotypic ratio. Round and yellow 9 मिले, round and green 3 मिले, wrinkled and yellow 3 मिले, and wrinkled and green 1 मिला. So this is the ratio. बट अगर आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे उसको ध्यान से. ऑन ऑब्जर्विंग F2 मेंडल फाउंड दैट येलो एंड ग्रीन कलर, आप ओनली वन कैरेक्टर देखो, कलर देखो, येलो एंड ग्रीन का जहाँ पर भी येलो एंड ग्रीन कलर लिखा हुआ है वो देखो, वो 3:1 रेशियो में है. चाहे ऊपर 9:3 है, वहाँ पर भी येलो एंड ग्रीन लिखा हुआ है, तो वो उसको क्रॉस कर दीजिए, 3:1 ही आ जाएगा. नीचे वाले दो में भी येलो एंड ग्रीन लिखा हुआ है, वो भी 3:1 रेशियो है. और अगर राउंड एंड रिंकल्ड देखो, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है राउंड एंड रिंकल्ड, फर्स्ट में और थर्ड में लिखा हुआ है राउंड एंड रिंकल्ड 9 and 3, तो ये रेशियो क्या बना 3:1. सेकेंड एंड फोर्थ में लिखा हुआ है राउंड एंड रिंकल्ड, अगेन 3:1. अगर हम सिंगल कैरेक्टर को देख रहे हैं तो अगेन 3:1 रेशियो आ रही है, लेकिन अगर हम टू कैरेक्टर्स को देख रहे हैं तो द रेशियो इज 9:3:3:1. दिस इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस. Okay, so what is the law of independent assortment? The inheritance of one character is independent of the inheritance of the other character. एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के साथ नहीं जुड़ती है, they are separate. It states that when more than one pair of characters are involved in a cross, factor pairs independently segregate from the other pair of character. यहाँ पर डायग्राम में भी बना हुआ है कितने तरीके के गेमिट बन सकते हैं. फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी है कौन कौन से गेमिट बन सकते हैं. सेकंड की पॉसिबिलिटी है जो येलो वाला ए है वो ग्रीन वाले बी से भी जा सकता है, येलो वाला ए लाइट ग्रीन वाले बी के साथ भी जा सकता है. तो दो गेमिट्स तो यही बना देगा. क्रीम कलर का जो स्मॉल ए है वो ग्रीन के साथ भी, डार्क ग्रीन के साथ भी जा सकता है बी के साथ, और क्रीम कलर का जो ए है वो लाइट ग्रीन के साथ भी जा सकता है. तो 2 टाइप्स ऑफ गेमिट्स आर फॉर्म विद दिस. तो यानी 4 टाइप्स ऑफ गेमिट्स आर फॉर्म्ड in this combination when there is a dihybrid cross. So with this all the 3 laws are complete. This is your homework. You will make a table showing the genotype of dihybrid cross and the ratio तुम्हारे सामने है. You just calculate, make the tally bars. हर एक टाइप का जो जीन्स लिखे हुए हैं वो कॉम्बिनेशन वो दिए हुए हैं साइड में तुम्हारे पास. कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कितने हैं, इस तरह से अलग अलग आप देखिए, एक एक को क्रॉस करते जाइए और उनके सामने टैली बार बनाते जाइए. यू विल गेट द रेशो 1:2:1:2:4:2:2:1:1. इधर के लेफ्ट हैंड साइड पे 1:2:1 है और राइट हैंड साइड पर भी 1:2:1 है और बीच में 2:4:2 है. 9 है. 9 टाइप्स ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आर देयर. सो मेक दिस. I hope you must have understood the topic, all the 3 laws of dominance, law of segregation and law of independent assortment. With this, we are finishing the part here, finishing the video here. Thank you for watching the video. Thank you for staying with me and wait for my next video. Subscribe the channel. Do the question paper which is given in the box.